अपने सोलो श्रीलंका ट्रैवल के दौरान जब मैं 70 साल के पैट्रिक से मिला था फ्रॉम फ्रांस, तो उसने मुझे एक बात बताई थी। उस बात को सुनकर मैं अंदर से इतना हिल गया था क्योंकि वो बात अगले 70 सालों तक मुझे याद रहने वाली थी। तो इनसे मिलिए पैट्रिक फ्रॉम फ्रांस। तो भाई साहब, अभी मैं एक हॉस्टल में था और आई जस्ट मेट वन गाय, वन हेल ऑफ अ गाय, पैट्रिक from France. Hello, Patrick. Hello, hello. Come on. How are you, everybody? These videos can see my family, my friends, and my students. They will see. So I just wanted to tell them that you traveled here in India, like in 20s, Yes. and now you're in 70s. In 70s and Yeah. Beginning on the end of 70s. Right. It's quite literally goosebumps. I got a goosebumps from hearing your story, man. Traveling across Afghanistan, Pakistan, Yes, and Bangladesh at the time. That was, Bangladesh, when it changed, just the year it changed. yeah, 1971. I just want to add for you, I returned first time in India the year of the tsunami. Right. I was there. I was in Cochin, the Cochin, year of yeah. the tsunami. That was 2004, I guess. 2004. 20. Yeah, 2004 after Christmas. Yeah. Right. Yeah. I heard about that. Yeah. It's incredible. तो भाई साहब, ये है बंदा अपने 20s से घूमता है पूरी दुनिया और लगातार इसने पूरा यूरोप, मेडिटेरियन सी, इजराइल, लेबनान, पैलेस्टाइन, ये सारी चीज़ें उन्होंने घूमी है। और ये अभी 70 what is the greatest advice you give you anyone who travel or The greatest souvenir? yeah how do you The greatest souvenir? Yeah. no greatest souvenir, no. I want to give you some advice to who love to travel or who's more and more enthusiastic to adventure in his life. Nowadays? Yeah, nowadays. Wow. What or you could say, what do you tell yourself back to the 20-year-old Patrick? In Afghanistan. Yeah, In Afghanistan. right. It was incredible. Right. You know, people who have never seen any stranger, they thought you were each American or Russian, but nothing else in the world. Right. You know. They don't know that. And the people very poor, but we were traveling with rucksack and they were asking us, do you need something? Oh, people are helping. Yeah. Do you That's- need? Do you need? Yeah. Do you need help? Afghanistan has a whole different hospitality, man. Yeah. Different, very, very large, Right. very large. Right. It's nice to talk to you, man. Oh, merci. Definitely we'll meet Merci, someday. hello. And come back anytime in India. I will show you around. Oh, I'll yeah. show you my school. Yes, because 10 kilometers from. No, it's 800 kilometers away from 800. 800 kilometers from From Mumbai. 800. 800. Oh, but in the Still a one-night journey. in the middle, In the inside the country, no, it's the along the coast. along the coast. But In direction have you know the Gujarat? place Karachi? Karachi. No. It's the southern part of the Pakistan. Pakistan, yes. The Gujarat state, yeah. the Sindh. Oh, in this Yeah, state. I've never been there. My school is in between the Sindh. Okay, Yeah. It's a good place to discover in India. Right. It was not very known at my time. It was not known. Not at all. known. But Merci come à back, toi. come back anytime, man. Come back. Yeah. Thank you so much. Merci. Yeah. Bye. जिनको मालूम नहीं उनके लिए, मेरा नाम है एडवेंचर शुभम और पिछले कुछ दिनों से मैं श्रीलंका सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ। अगले 7-8 दिनों तक मैं पूरा श्रीलंका घूमने की कोशिश करूंगा। फिलहाल मैं हूँ हिक्काडुआ बीच पर। यहाँ से मैं ट्रेन पकड़ के जाऊंगा गैले, जहाँ पे है डच फोर्ट, और वही डच फोर्ट मुझे देखना है। तो चलो चलते हैं। बाहर के नज़ारे देखते हुए मैं जब ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था तो मेरे ठीक सामने बेलारूस से 2 ट्रैवलर आए थे, तो मैं उनसे बातें करने लगा। Are you on vacation? Yes. Yeah. This is my vacation. Okay. तो भाई साहब, अभी मैं जा रहा हूँ हिक्काडुआ टू गैले बीच और मेरे पास है बेलारूस से आए हुए 2 ट्रैवलर्स। He's from Belarus and she's also from Belarus. What is your name, brother? Sorry? Name. Antonio. Antonio. Huh? Aniko. It's Yes. like a Japanese anime name. Aniko. Aniko, yes, Yeah. yes. We live in Poland.
We You live in Poland? Poland, Oh, yes, yes. Okay. You both? Sorry, yes, we both. He's a YouTube thumbnail maker. Sorry? You are the YouTube thumbnail designer, right? Yes, yes, And yes. she's a ceramic teacher. Yes. I met them on a galley train, and these two guys are both here for vacation. Nice to meet you, brother. Nice to meet you too. Nice to meet you. Nice to meet you. Yeah. This is my first international trip. I've never been outside of the India. Oh. Yeah. Oh, wow. This is the first time. Yeah. But I think Sri Lanka is a good choice because I think it's a little bit same culture. Yeah, safe culture, and people are real life here. Yeah. How old are you? I'm 26. Okay. Yeah. शायद पहली बार देश की सीमा पार करके मैं दूसरी जगह गया था, इसके एक्साइटमेंट हो सकता है या कुछ और रीज़न हो सकता है, लेकिन काफ़ी उत्सुक था मैं नए लोगों से मिलने के लिए। श्रीलंका ट्रैवल करने के समय मैंने बहुत सारी प्लानिंग की थी कि एक मैप का रूट बनाया था, तो मैं यही चीज़ें इनको दिखाना चाहता था, कैसा मेरा रूट रहेगा, क्या क्या मेरे ट्रैवल प्लान्स रहेंगे। इस पूरे जर्नी के दौरान मैं बहुत सारे लोगों से मिला, उन सभी की जर्नी, उन सभी की कहानी मैं सुनना चाहता था और उन सभी का जो एक नज़रिया होता है ट्रैवल के दौरान वो समझने की कोशिश करना चाहता था। और मुझे एक बात खास लगी इन सभी ट्रैवलर्स की, वो सारे लोग जो आते थे यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए कम से कम 15 दिन, 20 दिन, कुछ लोग 30 दिन, कुछ लोग 40 दिन, 2 महीने, 60 दिनों तक ट्रैवल का प्लान बना के वो आते थे। और इन सभी में बस मैं अकेला ऐसा बंदा था जो कि बस 13 दिनों के लिए श्रीलंका घूमने आया था। Not walk freely on the road. People like directly. I'm also scared to eat something wrong. Eat something wrong. Yes. Yeah. Have Yeah. Everything is spicy here. Yeah. You can't handle that much spice. But if you tell them that don't put so much spice on that thing, then they'll don't put it. You like spicy? Yeah, by default we eat spicy, so I like spicy. Okay. Yeah. Do you need help? Oh, thank you. Bye. Bye. Aniko, Antonio, bye. Bye, friends. Subham. Yeah, Subham. Bye, Subham, bye. थोड़ी देर बाद मेरा भी स्टेशन आ गया। अभी मैं पहुंच चुका था गैले। ये डच फोर्ट के लिए फेमस जगह है, बीचेस भी अच्छे हैं। स्टेशन पर उतरने के बाद और 2-3 किलोमीटर चलने के बाद मैं अपने हॉस्टल पहुंच चुका था। हॉस्टल का नाम है बैकपैकर्स हॉस्टल। इस हॉस्टल के लिए मैंने 1800 रुपये दिए थे, इंडियन करेंसी के हिसाब से 600 रुपीज़, 600 रुपये होते हैं। और पूरे हॉस्टल में बस मैं अकेला ही बंदा था। And corner another bathroom. Okay. Wi-Fi password. Thank you. Yeah. Balcony area also. No problem. Right. Yeah. Yeah. Please, sir. Thank you so much. तो ऐसा कुछ दिखता है भाई गैले का एक हॉस्टल। सिंपली गूगल पे सर्च किया था agoda.com पे कि हॉस्टल नियर बाय इन गैले। तो ये ट्रैवलर्स बैकपैक करके एक हॉस्टल है। यहाँ पे सामने गैलरी है। बस स्टैंड से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे 950 मीटर्स की दूरी पे ये हॉस्टल है। इस हॉस्टल में हमें 1800 श्रीलंकन रुपीज़ में ऐसा रूम मिला है, जो कि इंडियन रुपीज़ में लगभग 600 रुपीज़ होता है। 600 इंडियन रुपीज़ में ऐसा बेड मिलता है एक दिन के लिए। यहाँ पे चेक इन का टाइम है सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक, और चेकआउट का टाइम है दोपहर के 12 बजे तक। रात के 10 बजे तक आप इस होटल में आ सकते हो, हॉस्टल में आ सकते हो, और सुबह के 11 बजे आपको चेकआउट करना पड़ेगा। तो ऐसे डबल बेड दिखते हैं। फ़िलहाल तो इस हॉस्टल में कोई नहीं है सिवाय मेरे। बाकी 2-3 रूम्स डॉर्मेट्रीज़ है, वो ये नॉन एसी वाली है, बाकी दूसरी एसी वाली है। तो एसी का प्राइस ऑब्वियसली 3000 रुपीज़ है, मतलब इंडियन करेंसी में 1000 रुपीज़, और ये नॉन एसी का 600 इंडियन रुपीज़ और 1800 श्रीलंकन रुपीज़। तो इस मेरे साथ तो अभी कोई नहीं है, लेकिन बाकी के डॉर्मेट्रीज में कुछ ट्रैवलर्स रहते हैं।
हॉस्टल में बैग रखने के बाद और थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद अभी मैं जाऊंगा गैले डच फोर्ट की तरफ। हॉस्टल से 1.5 किलोमीटर के आसपास ही ये सारा इलाका पड़ता है, तो चलते हुए जाना ही ज़्यादा सूटेबल रहेगा। 5-10 मिनट के वॉक पे डिस्टेंस पे ही ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने मिलेगी। चलते हुए जाने का फ़ायदा एक है कि रास्ते में मार्केट देखने को मिलेगा, वापस आने का रास्ता पता चल जाएगा, लोग भी दिखेंगे, शॉप्स भी दिखेगी और एक लोकल एक्सपीरियंस हमें मिलना चाहिए। वेलकम टू गैले। ये है गैले का लोकल मार्ट। यहाँ पे फल, सब्जी और बहुत सारे फल मिलते हैं भाई। इसी के पीछे था जहाँ पे किराना टाइप में सारी चीज़ें मिलती थी। हाउस होल्ड में जो चीज़ें लगती है वो सारी की दुकानें वहाँ पे है। यहाँ से रास्ता दिखाई देता होगा। ये है भाई गैले और इस साइड पे है पूरा बीच, समंदर, और इस साइड पे है मार्केट। That's the post office of Gal. वो बड़ी सी एक क्लॉक है। काफी वक्त तक श्रीलंका पे डच, फ्रेंच एंड यूनाइटेड किंगडम का राज रहा था, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बनाई थी। तो उसी का एक ये जो क्लॉक है, ऊपर क्लॉक दिखाई देता होगा, वो सारा क्लॉक अंग्रेज़ों की देन है। यूनाइटेड किंगडम ब्रिटिशों ने श्रीलंका को सेलोन नाम दिया था, CELYON, सेलोन। पता नहीं क्यों लेकिन दिया था, लेकिन बाद में 1970 में यहाँ के लोगों ने सेलोन से श्रीलंका नाम कर दिया। ट्रैवल की वीडियो देखने के बाद इतना भी इंस्पायर मत होना कि ये सब गाजर का हलवा लगने लगे, क्योंकि सोलो ट्रैवल करना बहुत दिक्कत करता है। कभी कभी रास्ते में बहुत सारे घटिया लोग भी मिलते हैं। आप लड़की हो या लड़के हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है उन्हें। वो अगर उनका अगर आप पे दिल आ गया तो वो नहीं छोड़ेंगे आपको। सो हमेशा मैं ट्राई करता हूँ कि रात को ट्रैवल अवॉइड करूँ, और किसी के बात करने के तरीके से भी आप बता सकते हो कि वो व्यक्ति कैसा है। उसने अगर सेफ डिस्टेंस रखा है आपके और उसके बीच में, तो अगर मान लो कि मैंने किसी से रास्ता पूछा है, एड्रेस पूछा है, तो कुछ लोग जो क्रीपी होते हैं, घटिया लोग होते हैं, वो बहुत क्लोज आने की कोशिश करते हैं। सो ये काफ़ी चैलेंजिंग टास्क होता है, उनसे कैसे डील करें। तो सोलो ट्रैवल करना, जब हम लोग वीडियो देखते हैं, आप कैमरे से जब ये वीडियो अपलोड होगा तब देखते हो तो अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही रियल लाइफ सिचुएशन आती है तो आप नहीं कर सकते हो कुछ भी नहीं। तो उस टाइम पे अपना दिमाग खुला रखना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। 99% लोग अच्छे होते हैं, 1% घटिया लोग होते ही होते हैं। सो तो फिलहाल मैं हूँ भाई गैले के डच फोर्ट्रेस पे। डच लोगों ने यहाँ पे एक फोर्ट बनाया था, जो कि आज से लगभग 200 साल पहले की बात है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम, डच और फ्रेंच लोगों ने काफ़ी साल राज किया है। 1970 तक उन्होंने इसे सेलोन नाम दिया था। अलग अलग कंट्रीज़ अलग अलग तरीके से श्रीलंका को बुलाती थी, इन द सेंस कि श्रीलंका के अलग अलग नाम थे। जैसे अपने भारत का इंडिया नाम है, हिंदुस्तान नाम है, वैसे ही श्रीलंका के लिए उन्होंने सेलोन नाम दिया था। पूरा जो किला है वो लगभग 9 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। और यहाँ पे एक तोप है जिसका जो बेस है ये लकड़ी का है, और ऊपर ये सारा मेटल का है। यहाँ से दुश्मन पे फायर करते होंगे वो लोग। सो दिस इज़ अ कैनन। जगह जगह पे वॉच टावर्स बनाए गए हैं। वॉच टावर्स इन द सेंस कि जहाँ से दूर तक नज़रें रखी जा सकती है, ऐसा इलाका। वहाँ पे भी एक टावर है, और यहाँ से अभी मैं जाऊँगा। जगह जगह पे यहाँ पे कैनन्स रखी हुई है। देयर इज़ अ वन, अनदर वन एंड थर्ड वन इज़ देयर।
ये है भाई सेंट्री बॉक्स। यहाँ पे शायद मुझे लगता है कि जो वॉच टावर होते हैं वैसी कुछ चीज़ होगी। अंदर जाके देखते हैं। यहाँ देखो, देखने के लिए ऐसी छोटी छोटी खिड़कियाँ बनाई गई हैं चारों ओर का इलाका आप यहाँ से देख सकते हो। अगर बाहर से कोई अटैक करेगा तो सबसे पहले यहीं से पता चल जाएगा कि कोई दुश्मन आ रहा है। यहाँ समंदर का इलाका बिल्कुल सटीक लगा हुआ है। पूरा जो किला है 9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अंदर बहुत सारे शॉप्स, बहुत सारे रोड्स बनी हुए हैं। किले की दीवार मजबूत तरीके से बनाई गई है क्योंकि ये दीवार पूरा समंदर को सटीक तरीके से लगते हुए हैं। इसीलिए बड़ा ढांचा, बड़े वॉच टावर्स और कैनन रखने की जगह, ऐसे पूरे किले का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई पड़ता है। थोड़ी दूरी पर ही मुझे एक स्टूडेंट्स का ग्रुप दिखाई दिया था जो कि फॉरेन लोगों से बातें कर रहा था। पूछने के बाद पता चला कि ये सारे इंग्लिश एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं और वो अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए ट्रैवलर्स से, फॉरेन लोगों से इंग्लिश में बातें करते हैं। तो मैंने भी इनसे थोड़ी बातें की। I just wanted to ask you. Okay, first of all, myself is Shubham. I'm from India. Currently, I'm traveling to the Sri Lanka. So this guy told me that this is the English Academy. So you are here to meet other people and talk to them. And what questions did you ask to them? Why do you came to Sri Lanka? What's your country? What's your country? Where are you from? What do you think what do you think culture? about our culture and our Country. Right. And in that way, you could try to practice the English language. We want to- But most of the people, they don't. The English not their native language. They speak French or maybe Spanish or Russian. So you're okay with this? Someone can manage that. The German ones or all is Yeah. Most people can speak English. It's nice to meet you, all of you. Yeah. Bye. My name is Shubham from India. Okay, thank you. Yeah, I'm a teacher. Yeah, thank you, man. Nice to meet you. Okay, what is this? Chocolate. Okay. Okay, thank you. Thank you so much. It's lovely to, nice to see you. India, which Mumbai. I'm from Mumbai. Yeah. Welcome to Sri Lanka. Thank you so much. Yeah. Bye guys. Bye. तो भाई साहब, ये कुछ इंग्लिश एकेडमी वाले लोग थे जो इंग्लिश प्रैक्टिस कर रहे थे फॉरेनर से बात करके। काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बात लगी। उन्होंने मुझे ये लेटर भी दिया है, वेलकम टू श्रीलंका, और एक चॉकलेट भी दिया। सो दैट्स व्हाई आई ट्रैवल टू मीट न्यू पीपल। एक जगह पे रहने का कोई फ़ायदा नहीं बॉस। दुनिया जब तक नहीं घूमेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो अभी मैं सबसे साउथ वाले इलाके में हूँ श्रीलंका के। ये है गैल का फोर्ट्रेस। डच लोगों ने इस फोर्ट्रेस को बनाया था। काफ़ी सारी पुरानी चीज़ें हैं। Madam, I take both of you. Yeah. Yes. अच्छा लगता है भाई, किसी की हेल्प करने से बहुत अच्छा लगता है। Ni hao. Yeah. Thank you so much. Yes, नमस्ते। एक बुजुर्ग चाइनीज कपल था भाई। अभी मैंने उनके कुछ फ़ोटो खींचे तो वो जो बुजुर्ग लेडी थी वो बोल रही कि मैं भी आपका फ़ोटो खींचूंगी। तो काफ़ी शिद्दत से उन्होंने 2-3 एंगल लोगों को रुका लिया, बाद में 2-3 एंगल से फ़ोटो खींचा।
आगे चलकर जाने के बाद कुछ बच्चे मुझे पतंग उड़ाते हुए दिखे, तो मैंने भी उनसे वो पतंग ले लिया। किला देखने के बाद मैं वापस मेन सिटी में आ गया। बहुत थक गया था, इसीलिए एक होटल पर जाकर मैंने खाना ऑर्डर कर दिया। यहाँ पे खाने में था कोट्टू। जब तक ये ऑर्डर आ रहा था तब मैंने डायरी में अपने पूरे दिन भर क्या क्या देखा, किन किन लोगों से मिला, उन सब के नोट्स लिख लिए, ताकि आगे चलकर अगर डायरी लिखूंगा तो उसमें ये काम आ सकता है। उसके बाद मैं सीधा हॉस्टल चला गया। हॉस्टल जाने के बाद पूरे दिन की थकान थी, इसीलिए डायरेक्ट सो गया। तो ये है भाई बैकपैकर्स ट्रैवलर हॉस्टल इन गैले श्रीलंका। तो बाहर की व्यूइंग गैलरी कुछ ऐसे दिखती है। ये बैठने का इलाका है और यहाँ पे है हमारी डॉर्मेट्री। ऐसे डबल बेड वाले कॉट बेड्स होते हैं। इंडियन 600 रुपीज़ में 1 नाइट स्टे यहाँ पे मिलता है। आपके पास यहाँ पे एक चार्जिंग पोर्ट भी है बिल्कुल तकिए के पास, और ऐसा कुछ डबल बेड वाले 6 पर्सन्स के लिए ये डॉर्मेट्री 600 रुपीज़ पर नाइट के हिसाब से देते हैं। एसी भी है और फैन भी है, लेकिन एसी बंद था तो उन्होंने रात में मुझे फ़ैन दे दिया था। काफ़ी अच्छे लोग हैं भाई। ट्रैवल का मज़ा इसी में, नए लोगों से मुलाकात होती है और काफ़ी अच्छे लोग मिलते हैं। No, I wanted to capture that emotions. What happy you felt on the year of 20s and now 70s. Yes, in this 70s. So first, can you say your name? Yeah, Patrick. I am Patrick. From? I'm a Christian name, little name, from south of France. South of France. Yeah. I know only 2 cities, Paris and Cannes. You have been? No, this is my first. Yes, international okay. trip. Cannes, not really Cannes. I'm 200 kilometers from the sea, from Marseille, Oh, which is very known for this football team. right. I know about the Cannes Film Festival. Oh, yeah. Yeah. So you told me that in your 20s you came to India. Yeah, because in the 70, I've been traveling for 5 or 6 years, but coming back every winter for studies, you know. Where? In So, India? Not only in India, in Asia. Oh, Yes, okay. first time we were very young with 4 friends. We tried to go around The world. Mediterranean. Right. Mediterranean Sea. You Yeah. see, it's like a big lake. Big lake, It's yeah. not a lake. Yeah. It's a sea. You know. This is quite exciting, man. Quite exciting. And what is your job? What did you do the past 50 years? At this time, we were just beginning studies. Studies. In these times, Okay. much more sociology, anthropology. Right. So we were in the. We wanted to mix with the world and to understand in which world we are going to live. Right. And have you been not married or? Oh yes, after, but well, yes, 6 or 7 years after. But at the beginning we were only 4 guys. Right. With an old car Right. going a tour around the Mediterranean. Right. And where are they now? And in this year, I just tell you, we couldn't do it really because you cannot by staying along the coast, you cannot go around because anyway you are stopped by the borders of, Right. Israel. Right. In Israel, you cannot enter Rome. by land. By land. You come by plane or Tel Aviv, yeah. So we have been traveling Syria, Jordan, and we came back. The year after, I went to India in '69 to India, Nepal, and through Afghanistan because we were along the road. Each year we were traveling by ground. We didn't fly. Right. It was too expensive, impossible for us. Yeah. We were traveling 1 month for example, in June, traveling to
mix fruit to how we say in English to grow fruits on to gather it. Right, you know, right, right. you know. So big salary Right. for 1 month, one full month with a lot of Right. working hours, and with this money, three months traveling, Right. going and back. Going and back, come back Yes, to yes. here, So Asia. first time in north of India and Nepal, working in the mountains. The year before, I wanted to go further. You know, I wanted to go further, but we did not want to fly. The same thing, north of India, and it was East Pakistan. Right. Then in this year, in 71, it changed. Okay. It became Bangladesh. Bangladesh, And yeah. it was very difficult for me because I was mixed in what happened at this moment in the country, and I was very tired and Right. sometimes afraid, you know, because it was Yeah. So in the that street. was a quite hell of a time. I thought, you know, Right. I said I went across Chittagong, and I thought I could continue by land when going to Burma, but it was not possible. Yeah, at that time that was not It possible. was not possible. Right. Burma is a complicated. Right. Yes. It was exciting to hear this Oh story. yes, Yeah. sure. Yeah, just. I still wonder what have you done like a job? If you can half a cup of tea for me, you can do it. Merci. Sir, what is this? It's meat. Meat? Yes, it's meat with little. Chicken pieces, I guess. Yes. Okay, you know it's too long. And, So I have been in Nepal, oh yes. and this is my second country. I wanted to travel the world. This I'm is a your teacher. second country. Are you You're Yeah. a teacher. I teach mathematics to Mathematics. high school. High school. Yeah. Wow. I guess you are 35, No, 25. 25, and you still are teacher. Yeah, this is my In high vacation. school? Yeah. Wow. You know, if I could be, I'd like to buy 10 or 20 years more. Yeah. But I don't know where No, this not. to ask. Well, It's not. Is there anybody? It is not Because possible. I have my card. I can Right, pay. but it's not possible. It doesn't work like this. When you travel, you feel like very small, and world is a whole big thing, Yeah. and you see more and more and more. That's why I talk to strangers, Yeah. get to know their experiences. Yeah. There you're right. It's all right. You know. If you can, I will leave you my email. Yeah. I will. तो पैट्रिक को मैं इसी बैकपैकर्स हॉस्टल में मिला था। पैट्रिक ने मुझे एक बात बताई थी कि आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक। मैंने उससे पूछा था कि 70 साल की उम्र में भी आप अभी इतना ट्रैवल करते हो, तो उन्होंने यही बोला कि मैं स्मोकिंग करता हूँ, ना ही मैं दारू पीता हूँ, अल्कोहल लेता हूँ। तो यही है उनके फिटनेस का राज। और ये सुन के काफ़ी शौक लगा मुझे, क्योंकि सारे फॉरेनर्स, यूरोपियंस, दे ड्रिंक अल्कोहल अ लॉट, बट पैट्रिक ने कहा कि मैं ये नहीं करता हूँ और मेरे फिटनेस का यही राज है। शायद इसी वजह से मैं अभी तक फिट हूँ और दुनिया घूम रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ। वक्त आ चुका है अभी पैट्रिक को बाय कहने का, और काफ़ी एक अनोखा एक्सपीरियंस रहा। गैल में 2-3 जगह है और देखने लायक, लेकिन अभी इस हॉस्टल से मुझे जाना है अगले डेस्टिनेशन की तरफ। पैट्रिक को बाय करके मैं चला गया रेलवे स्टेशन की तरफ।